He who brought the treasure of divine love and who was filled with compassion and mercy. Where is such a personality as Srinivasa Acharya Gan? Where are my Swaru Damodar and Rupa Goswami? Where is Sanatan? Where is Raghunath Das, the savior of the fallen? Where are my Raghunath Bhatta and Gopala Bhatta? And where is Krishnadas Kaviraj? Where did Lord Gauranga, the greatest dancer, suddenly go? I will smash my head against the rock and enter into the fire. Where will I find Lord Gauranga, the reservoir of all wonderful qualities? Being unable to obtain the association of Lord Gauranga, accompanied by all of these devotees, in whose association he performed his pastimes, Narottama Das simply weeps. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurubhe Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Sopadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakha Nitansya. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanang pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarini. Nama Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Sakti Swarupaya Rupanugavarayate. Nama Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratise Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today is most auspicious day, the disappearance day of Srila Bhaktivinoda Thakur and also disappearance day of Gadadhar Pandit. दुख मध्य कौन दुख हरे गुरुतर. Chaitanya ne, this is asked by Chaitanya Mahaprabhu to Ramananda Rai. Dukha madhye, what is the most miserable situation for a Vaishnava that he can experience in his lifetime? Then he told, Vaishnava vichheda dukha vina dukha nahi ar. When we separated from Vaishnava or from Vaishnava Acharyas, when we separated from them, being not getting their association, so that situation is the most miserable situation. Ramananda Rai explained. At the same time, we see what Bhaktivinoda Thakur says, because this is his disappearance day, and in his disappearance day of Namacharya Haridas Thakur, Bhaktivinoda Thakur commented, he resigns seal
who thinks that Vaishnavas die. Thou art is living still in sound. Vaishnavas die for living, and living spread holy names around. So there is no death for a Vaishnava. Vaishnava only he is here in preaching mission of Chaitanya Mahaprabhu. Then we enter in Nitya Leela, then he is also engaged in divine service of the divine couple, Radha Krishna and Gauranga. So that's why these days both for lamentation and also for divine happiness, seeing that Acharya enter into Nitya Leela in Radha Krishna's pastime. So in this way, so today is my topic is Bhakti Vinod Thakur, and it will continue up to 8:40. Dharmat Prabhu told me 8:40 you can finish. So you know he is such a big Acharya in our Sampradaya. He has special place, Bhakti Vinod Thakur. Even Srila Prabhupada in Mayapur, when he was giving a class on Gaur Purnima day, then he told, actually the father of the modern Krishna consciousness movement is Bhakti Vinod Thakur. He is that Acharya who for the first he was dreaming about the expanding this Hare Krishna movement all over the world. He is a Goshthanandi Prachar. At the same time he was doing bhajan, but he was for the first time he was thinking that this Krishna consciousness should spread all over the world. That is the Chaitanya Mahaprabhu's forecasted. Prithivite ache jatanagara gram sarvatra prachara hoive maro naam. Every village and town around the world, the holy name must be spread. So Bhakti Vinod Thakur is the Acharya who forecasted this. All the Westerners and will come to this Mayapur Dham, to Vrindavan, then they together with this Eastern people, we are Indian peoples, specifically Bengalis and the others. They will all together chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. There is Adbhut Mandir will manifested in Mayapur. This is also forecasted by Bhakti Vinod Thakur. And then he also told about it. Some person will come in future. He will take this mission all over world. Who is that person? Srila Prabhupada. So in this way we see Bhakti Vinod Thakur. He is a special place. He is known as seventh Goswami. Even when Vrindavan, we see the six Goswamis of Vrindavan. Bande Rupa Sanatana, Raghujugo, Sijiva, Gopalaka. So whatever the six Goswamis did for a Jajamandala in Vrindavan, in the same level, Bhakti Vinod Thakur alone did for Navadip Dham. For in the beginning, he has a desire, Bhakti Vinod Thakur has desired to stay in Brajadham. He is famous bhajan, he came to Vrindavan, then he wrote the bhajan. Radha Kunda Tata Kunja Kutira Govardhana Parvata Jamuna Tira. He wrote his bhajan. ए सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं, ए सब छोड़त Parana Haram. That is his desire. He has made a house in Radhakund also. Still this house, Bhakti Vinod Thakur house is there. But after he told, I will leave this body. If he will not leave Brajamandal, then better to leave this body. But in such a determination, when he come to Mayapur, then he was planning, he made a house here, then he went to some forest. That still he was in his magistrate job. He went to Mayapur. And from there he went to Tarapit for some official work. He went to Tarapit near Ekchakra,
before maybe 40 kilometers before Ekchakradev Tarapit. He went there for some official work. And in a guest house he was staying in the night. Then Chaitanya Mahaprabhu came in dream. Gauranga Mahaprabhu himself came. I sent you to this material world. You forgot your identity. You are Kamala Manjari. You are from spiritual. You come here for a special mission to fulfill my mission. Why you are seeing difference between Mayapur and Vrindavan? Why Navadip Dham and Maya? This is non-different. It's fast up and one of the offense to see the Mayapur, Vrindavan and Maya to difference. The same. So you must stay in Navadip Dham. And in Navadip Dham no one knows even where is my appearance place, where is my birthplace. And Navadip Dham, no, everyone forgotten about the Navadip Mandala Parikrama. Simply by doing Navadip Mandala Parikramas, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, the conditioned souls would deliver to the spiritual world. So who did all these things for Navadip Dham? That is your mission. Chaitanya Mahaprabhu told him in dream. That's why Bhaktivinoda Thakur, he was surprised, he was woke up, then he changed his whole plan. Plan was changed to stay in Vrindavan. Then make his house in Swarupganj. Wherever Bhaktivinoda Thakur made a house, he gave the name Swananda Sukhada Kunj. Because this is the Lalita Sakhi's Kunj name, the name of the Lalita Sakhi's Kunj. And our parampara is, whole parampara is in that ancestry, this Lalita Sakhi's ancestry. Swarup Damodar Goswami, Rupa Goswami, then in this ancestry. That's why he always gave his house, he is Kamala Manjari, he is from also spiritual world. Bhaktivinoda Thakur, in this way he made his home in Swarupganj, that is for this island for Kirtan. Kirtan? Yes. So there Bhaktivinoda Thakur made his house. And from there he even want to resign his job, his magistrate post, and he want to dedicate his whole life for development of Navadip. But the British government could not allow him, such a qualified person. Even they made a rail line from Swarupganj to Krishnanagar for him. He may go every day in train and could come back to his house. So in this way, Bhaktivinoda Thakur was finally decided, he was in his job, magistrate job, and still he was doing his job. I am not telling about his appearance today because very time short, today is disappearance day. So otherwise his childhood pastimes, there is very brief, we cannot touch all these pastimes. So anyhow, so he was from that building, some places he was when he was staying in a dharmasala. Anyhow, in his house he went in night time he climbed the roof and he was chanting his round, doing his bhajan and looking around. Then one day he suddenly saw a divine effulgence. A divine light was spread all over the areas where now we have Jogapit, or there is Balal Dighi nearby. Nearby there is Balal Dighi. This area was, a divine light was spread everywhere. He was surprised. And in the morning, he was sitting, there was no city, nothing, then how this light spread everywhere. Then in the morning, he just by walking, he went to this direction. Then he went. After came to this Balal Dighi area, then when he was returning, he was traveling all this area, then when he was returning, then in this Jogapit, this area, he saw this field. This field was full of tulsi plant. Then he was magistrate, everyone was very respectful. For those days, magistrate means Prabhupada told next to governor. So everyone
just folding hands and paying him obeisances. Then Bhaktivinoda Thakur asked, who is the owner of this land? Someone told, this is one Muslim, the owner of this land. Then he called the Muslim, the owner of the land. He told, this land belongs to you, you are a Muslim. But why you are planting this tulsi trees everywhere? This field was full of tulsi plant. Then he told, Babu, oh sir, actually I am not planting tulsi trees. Again and again I uprooted the tulsi trees and throw them out. And I cultivated the land and planted different other seeds. But whatever seed maybe I planted this, only tulsi appeared in this land. So I thought this land is useless. In this way I just left this land. This is useless land, nothing. Bhaktivinoda Thakur smiled, told, okay, you can donate this land, can give this land to me. He told, yes. Anyhow, or Bhaktivinoda Thakur got this land from this Muslim. Then he thought, could understand, because he is a Nitya Siddha Parikar of Gauranga. And this is the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. Because in Bhakti Ratnakara it is written, Navadipa Majhe Mayapura Nama Grama Tathai Janamilena Gaurachandra Bhagavan. So how is the people thinking in Navadip is a Janmasthan? So Bhaktivinoda Thakur told, definitely this place is the birthplace of Gauranga Mahaprabhu. Otherwise how these tulsi plants again and again appearing always here. But told, if I will tell, then he started searching his magistrate, all the previous records. He not just blindly. He searched all his files, all the maps, and old records. In this way, officially also he proved officially that this is the house of Jagannath Mishra, and this is the appearance place of Gauranga. But for the Vaishnavas to convince them, those days Jagannath Das Babaji Maharaj is known as Vaishnava Sarvabhauma. He is an emperor among the Vaishnavas. He is the Samrat. So he told, if this Vaishnava Sarvabhauma, the Jagannath Das Babaji Maharaj, he told this land is birthplace of Chaitanya Mahaprabhu, then everyone will accept this. Thinking in this way, he went to Jagannath Das Babaji Maharaj. He was also his Sikkha Guru, Bhagavat Sikkha Guru. So he explained everything to him, and he organized a huge Kirtan party. Huge. Thousands and thousands of Vaishnavas, just senior Vaishnavas in that Kirtan. Because Bhaktivinoda Thakur himself also in Kirtan party. Then there is a nice whole Kirtan party come with Kirtan. But Jagannath Das Babaji Maharaj was about in age, he was in advanced age, about maybe about age, those days he was like 112 or 113 years. He lived in this planet about 100, more than 120, because he lived about 142 years in the planet. So 47. Anyhow, he left. So when he came, he cannot walk, cannot stand even. He is a Brajavasi servant. His name was Bihari Lal. So Bihari Lal was in a basket. He put some seat and he put Jagannath Das Babaji Maharaj was sitting on that basket, and he was carrying him with on his head. So everyone chanting, dancing, coming. But when he came to this place, this Tulsi garden where Bhaktivinoda Thakur, he took the way and just entered to this place, this whole land. And Jagannath Das Babaji Maharaj immediately he jumped from the basket. He jumped from the basket. He was not even in power to.
stunned. He immediately jumped and putting his head up, he started dancing. He started dancing. He told, this is the birthplace of Gauranga. That's why in his pranam mantra we chanted, Gaura Avirbhava Bhumi Twang Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannatha Namaha. So he signifies that particular place. This is the appearance place of Gauranga Mahaprabhu. This is the birthplace of Gauranga Mahaprabhu. So because Jagannath Das Babaji himself, he recognized all Vaishnavas, now convinced, yes, this place is appearance place of Lord Gauranga Mahaprabhu. Then Bhaktivinoda Thakur also convinced everyone. Then Bhaktivinoda Thakur was planning to make a temple there. So Goswamis also, that different places, they discovered the important historical places and they also built temples. Bhaktivinoda Thakur also built a temple there. For that temple, Bhaktivinoda Thakur was begging door to door, 1 rupees even Calcutta in newspaper, Amrit Bazaar Patrika, the news came. Babu Kedarnath Datta, the magistrate, he is begging, he is going to door, and everyone must donate him. And he was not taking more rupees, 1 rupees from everyone. So everyone should claim, this is Mahaprabhu's temple. So in this way, this is the one of the greatest achievement of Srila Bhaktivinoda Thakur. Then he, for Navadip Mandal, he wrote so many books, Navadip Dhama Mahatmya, Navadip Mandal Parikrama, like many books there. He has wrote so many books, 100 books Bhaktivinoda Thakur wrote. But all of his books are still, some books are not published. In Bengali, still with his ancestors, they are staying in Birnagar. It's Ulagram, there is Bhaktivinoda Thakur's birthplace. Even Vaishnavas went and ISKCON devotees went for this scripture. He told, he charged so much Lakshmi to get this manuscripts. So Bhaktivinoda Thakur, anyhow, so then he planned how to excavate or re-establish this Navadip Dham Mandal Parikrama. Very Chaitanya Mahaprabhu's desire. That's why Radharani Maharaj is every year leading the Navadip Mandal Parikrama, taking the devotees. So Bhaktivinoda Thakur then, he wrote Navadip Dham Mahatmya and all this, many guides for Parikrama. And he established, this is for the first time the Parikrama, Navadip Mandal Parikrama was organized by Nityananda Prabhu himself. He took Jiva Goswami, he did first Parikrama of Navadip Mandal Parikrama. And accordingly, Bhaktivinoda Thakur also established this system of Navadip Mandal Parikrama, how to do Navadip Mandal Parikrama. But Bhaktivinoda Thakur heads the Sahajiyas. He told about 13 types of Sahajiyas. Aulo, Baulo, Karta, Bheja, Sakhi, Beki, Chudadhari, Gauranga Nagari, so many. There are 13 types of. And he was very careful not to associating with these Vaishnavas. Then he was, this is his achievements in Navadip Dham. Besides Navadip Dham, what's the time? 5 minutes, okay. He also so many achievements, he was a magistrate in Puri, how he Vishikeshan, who was claiming I am a incarnation of Mahavishnu, he suppressed him. And he has also the Sahajiyas like Bhaja Nitai Gaur Radhishyam, Japa Hare Krishna Hare Ram. This is also Bhaktivinoda Thakur wrote so many articles against this movement. And his son, Divine Grace, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, appeared in 1874 in Puri Dham.
and he practically fulfilled the desire of Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur only theoretically he was writing many things, but who will establish them practically? Practically he was just, everything was, Bhaktivinoda Thakur did everything through Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Bhakti Vedanta Swami Srila. His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Divine Grace Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, they fulfill his desires. So in this way, there's so many things to speak about Bhakti Vinod Thakur, maybe hours and hours and hours will go. So because my time is up, finished, I have to hand over to Bhakti Vaishnava Maharaj, His Holiness Bhakti Asra Vaishnava Maharaj is to speak about Gadadhar Pandit. So anyone, any question? For 2 minutes, I will ask, just give the question. Comment? I would like to say something more. Okay, Mahaprabhu, Maharaj want to speak. You have already explained that nothing about Jagannath Das Babaji Maharaj. Bihari was carrying 4 party reached there. So every year we are listening, like I have heard from Jataka Maharaj this like this first time, Loknath Maharaj this like this first time, and Gopalcha Maharaj this like. So how they describe party reached there on birthday. So Bihari was holding his basket. So what happened in the middle of Kirtan was going on around me, all of a sudden Jagannath was sprang out, springs Usham, and he went away little above than he had in the sky, and from there he landed on the ground and started standing. So this not that he came up, jumped out and sprang out and jumped and went above. His head was here, feet above. Just went above of the basket, just and jumped from there landed on the then landed on the ground. Okay. Hare Krishna. Any other comment or question? If you can mention something about how and where Bhaktivinoda Thakur disappeared. Oh, sorry, today disappearance day. So it is in Calcutta, in Bhakti Bhavan. He established Bhakti Kuti in Puri. He did many bhajan also there in last days, but actual place he disappeared, that is Calcutta. Calcutta, the Bhakti Bhavan, it is in 1882 or 83 he established that house, and he was residing that time in that house and he is doing his bhajan. He, for last 4 years, in 1914 he disappeared. In September is September month. Anyhow, so he disappeared on September 2 like this, but that is Calcutta, in Calcutta in Bhakti Bhavan. And after he left his body, his followers, they took his body to Swarupganj, and then there is his Samadhi. And his worshipable Lord is Gaur Gadadhar. So today is Gadadhar Pandits. Gaur Gadadhar, he worshipped them as Radha Krishna. He told Gadadhar Pandit, he was Radharani, and he was teaching Gauranga Mahaprabhu. Mahaprabhu is just, he is Krishna, but he is experiencing Radharani's feelings and his past, Radhaya Pranaya Madhuri Kidrisava. But Radharani herself also there. Gadadhar Pandit was correcting many times to that. It is not like this, it like this. So that's why he gave authority to Gadadhar Pandit to correct him sometimes. So anyhow, you will hear from Gadadhar Pandit from His Holiness Bhakti Asraya Vaishnava Swami. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. So today is one of the most shall speak in Hindi. क्या करना हिंदी? You told me to speak in Hindi also. तो आज केवल भक्ति विनोद ठाकुर के तिरुभाव तिथि नहीं है, उनसे पहले
भक्तिविनोद ठाकुर के जो उपासित गौर गदाधर विग्रह हैं, गौर शक्ति से गदाधर पंडित के भी तिरुभाव तिथि है, उसी दिन को ठाकुर भक्तिविनोद ने चुने। और श्री गदाधर पंडित ऐसे उनके जन्मस्थान तो बांग्लादेश में आज भी है। उनके पिताजी का नाम माधव मिश्र, बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार के थे। रत्नावती देवी उनके माताजी का नाम। 2 भाई थे उन्होंने, गदाधर पंडित और द्विजवाणीनाथ। कोई कहते हैं उनके भाई के पुत्र थे द्विजवाणीनाथ, ऐसे भी करके, जो भी हो वो तो अविवाहित थे। गदाधर द्विजवाणीनाथ के पुत्र है नयनानंद ठाकुर, नयन मिश्र, 2 गदाधर पंडित के प्रिय शिष्य थे। गदाधर पंडित ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने उनके माता पिता के साथ गंगा तटवर्ती वास करने के लिए, गंगा निकटवर्ती, उन्होंने बांग्लादेश से मायापुर आए और जगन्नाथ मिश्र के घर के पास ही उनका घर बनाया, वहीं रखे। श्री सची माता के साथ रत्नावती देवी का अपने बहन जैसा संपर्क था। तो इसलिए वो दोनों, गदाधर पंडित लगभग 2-2.5 साल की उम्र में छोटे थे महाप्रभु से। तो जब 10-11 साल के थे वो वापस आए नवद्वीप, मायापुर आए, तो महाप्रभु तब लगभग विद्या विलास और पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई शुरू हो चुका था उनका, बाल्य चापल्य छोड़ कर क्योंकि एजुकेशन पढ़ रहे थे उन्होंने, विद्या विलास। तो सेम स्कूल में सहपाठी थे गदाधर पंडित और श्रीमन महाप्रभु, क्लासमेट थे। और वो भी न्याय के छात्र थे। तो निमाई पंडित जब इतने प्रतिभा संपन्न बालक थे, हमेशा युक्ति तर्क करते थे जो कई भक्तों को पसंद नहीं हुआ करता था। गदाधर पंडित को भी पसंद नहीं था। गदाधर पंडित बचपन से महा उदासीन वैरागी व्यक्ति थे, ब्राह्मण बालक थे। वो आजन्म कृष्ण भक्त थे, शुरू से ही उनका कृष्ण के प्रति निष्ठा था। तो राधा रानी थे ही, वो तो स्वाभाविक था। वो भी राधा रानी के भाव लेकर के महाप्रभु आए थे। जैसे प्रभुदानंद महाराज बता रहे थे, मैंने ऐसे सुना हूँ कि राधा भाव को और कांति को स्वीकार करके महाप्रभु आए। तो राधा रानी ने सोची, उन्होंने तो लेकर गए मेरा भाव और कांति, लेकिन वो ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं काम, उनको देखने के लिए। तो राधा रानी स्वयं आए, बोले आई हैव टू चेक, अगर मेरा भाव कुछ लेकर के ठीक से कर रहा है ना इसलिए उनको चेक करने के लिए गदाधर स्वयं आए थे। लेकिन उनका भाव बड़े दूसरा था। जो भी हो, ऐसे मैंने सुना हूँ कि श्री गौर नारायण जो प्रति कलियुग में, हर कलियुग में जो अवतार के रूप में जो भगवान आते हैं, जो धर्म प्रचार करने, वो गौर नारायण भगवान है। उनके शक्ति है विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया। लेकिन जो गौर कृष्ण आते हैं, वो आते हैं केवल 1 डे, इन एक कल्प में जो भगवान आते हैं, उन्हीं के बाद आते हैं गौर कृष्ण। गौर नारायण नहीं, गौर नारायण फिर उसके अंदर ही आ जाते हैं उनके साथ में। तो गौर कृष्ण जब आते हैं, उनके शक्ति के रूप में फिर गदाधर आते हैं। हाँ, तो गौर नारायण उनके साथ में कंबाइंड रहते हैं, इसलिए लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया के साथ में रहेंगे। लेकिन असलियत में गौर कृष्ण का शक्ति से गदाधर पंडित है। तो गौर शक्ति गदाधर, ऐसे कहेगा पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकम भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। वही भक्त शक्ति है। पंचतत्व आत्मकम कृष्ण, 5 तत्व, कई कहते हैं 6 तत्व। 2 गुरु को भी लिया जाता है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के अंदर, इसमें विलास करते हैं महाप्रभु इसी तत्व में। तो इनमें यद्यपि कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी लीला आस्वादन के लिए इस अलग अलग रूप, अलग अलग तत्व में प्रकट हुए थे महाप्रभु। तो नवद्वीप लीला में और नीलाचल लीला में, दोनों में, क्योंकि महाप्रभु के पार्षद में सबसे मुख्य पार्षद है, सबसे एकांतिक और वरिष्ठ पार्षद के रूप में अंतरंग पार्षद में मुख्य है। ऐसे नित्यानंद प्रभु
अद्वैत आचार्य आदि आदि हैं, लेकिन अंतरंग मुख्य पार्षद में श्री गदाधर पंडित को माना जाता है। इसलिए दोनों लीला में वो दोनों साथ में रहे, वो उनका छूट नहीं हुआ। बाकी सब तो अद्वैत आचार्य रहे। नित्यानंद प्रभु तो बोले कि तुम आओ मत, विदा कर दे, लेकिन गदाधर पंडित तो क्षेत्र संन्यास लेकर रह गए इधर। वो भी महाप्रभु की इच्छा ही था, उनके साथ ही रहे। तो जब नवद्वीप लीला में रहते थे तो उनके सहपाठी के रूप में उनके साथ भी कई बार जुक्ति करते थे महाप्रभु। तो गदाधर पसंद नहीं करते थे उनको, लेकिन महाप्रभु कभी कहते गदाधर तू मेरे पास नहीं आता है, मेरे से देख करके चला जाता है, क्योंकि मैं वैष्णव नहीं, कृष्ण भक्त नहीं, इसलिए। लेकिन देख लो, एक समय आएगा मैं ऐसे भक्त बनूंगा, ब्रह्मा शिव भी आएंगे मेरे पास संग लेने के लिए। तो गदाधर पंडित उनके प्रतिभा को एक बार पकड़ लिए गदाधर को, रास्ता में पकड़ कर उनको पूछने लगे। तो बोले कि ये मुक्ति के अर्थ बताओ। गदाधर पंडित क्लास में तो वही पढ़े आए, वही अच्छे स्टूडेंट थे। बोले आत्यंतिक मुक्ति के लक्षण बोले। तो उनको फिर महाप्रभु का तो स्वभाव है तुरंत उसको खंडन मंडन करना। तो गदाधर पंडित उनके इतने अत्यंत प्रतिभा को देख कर के मन में सोच रहे थे, इतने प्रतिभा संपन्न बालक, ब्राह्मण बालक है, अगर वो कृष्ण भक्त होता तो मैं उसके संग कभी ना छोड़ता। लेकिन पता नहीं जुक्ति तर्क में फंसा रहता है। तो सही हुआ जब श्रीमान महाप्रभु गया गए और ईश्वरपुरी से दीक्षित होकर वापस आए, तो उनका पूर्ण परिवर्तन हो गया महाप्रभु का। और जब ईश्वरपुरी उसके पहले एक बार नवद्वीप आए थे, तो गदाधर पंडित के विरक्ति भाव और कृष्ण भक्ति को लक्ष्य करके उनको पास में रखा करके वो उनको ही नंदनाचार्य घर में रुकते थे ईश्वरपुरी। तो कई महीना तक कृष्ण लीलामृत पाठ कराए थे ईश्वरपुरी स्वयं। अभी तो बाद में श्रीमान महाप्रभु जो गयास वापस आए तो उनका तो बिल्कुल बदल गया। अभी कोई जुक्ति तर्क विद्या के भाव नहीं रहा, केवल कृष्ण कृष्ण कह के रो रहे थे। सर गदाधर पंडित जी सुने कि निमाई बिल्कुल बदल चुके हैं। तो जब सुने शुक्लांबर का घर में आज उनका यह, तो शुक्लांबर घर में भी गदाधर पंडित चले गए। जब फूल तोड़ते समय छिप कर जाकर बैठे उनके घर में। और महाप्रभु जब उनके स्टूडेंट आए, उनकी बातचीत कर रहे थे, तो हमेशा रोते थे कृष्ण कृष्ण कर, कृष्ण परक अर्थ करते थे, रोते थे। उसको सुन करके गदाधर पंडित छिप करके घर के अंदर बैठे थे, अंदर से ही रो रहे थे, बड़े भावुक होकर रोने लगे। महाप्रभु पूछे कौन इतना जोर से रो रहा है? शुक्लांबर पूछे कौन, घर से कौन आवाज़ आ रहा है रोने का, कौन रो रहा है? न और कौन रोएगा, आपका ही गदाधर है। तो महाप्रभु गदाधर को पकड़ करके आलिंगन करके बोले, गदाधर तुम तो महासुकृतिवान है, बचपन से तुम्हारा मति कृष्ण में है, इतने वैरागी है इसमें। मेरा तो हुआ ही नहीं, मेरा तो बचपन ऐसे बिगाड़ दिया मैंने, कृष्ण भक्ति कर नहीं पाया, ऐसे युक्ति तर्क में गया। लेकिन आप लोग का कृपा से अभी मुझे कृष्ण भक्ति की महिमा पता चलता है, अभी मैं कृष्ण। तो फिर गदाधर फिर एक क्षण के लिए महाप्रभु के संग ना छोड़े। एक और घटना हुआ था नवद्वीप में, तो पास में घर दोनों का था। तो महाप्रभु बैठे थे, एक बार एक तांबुल लेकर के गदाधर आए उनको देने के लिए। महाप्रभु बैठ कर जिसे गदाधर को देखे बोले, गदाधर और बंशीधारी कृष्ण, श्यामल वर्ण कृष्ण कहाँ है? मुझे कृष्ण कहाँ है, मुझे बताओ कहाँ पे है, मैं कहाँ पाऊँगा उनको? तो विकल होकर के रोने लगे, उनको पूछने लगे। तो गदाधर बोले, कृष्ण कृष्ण तो सब जगह का, न तुम्हारे हृदय में है, मेरे हृदय में है कृष्ण ना। हाँ। तो तुरंत नाखून से अपने छाती फाड़ने लगे, ब्लीडिंग होने लगा। और जितने सची माता आगरा से खाड़े थे सब बोल गए वो तो शायद सुसाइड कर डाल गया, इतना कर रहा है, इतना आवेश में आकर छाती फाड़ने लगा। तो गदाधर पंडित उनके छोटे बालक थे, तुरंत हाथ पकड़े, बोले ऐसा मत करो, कृष्ण आने वाला, ऐसे करने से कृष्ण थोड़ी ना आएंगे, चले जाएंगे, अभी आ रहा है समय। उनको शांत करा दिए समझा करके, बिल्कुल शांत हो गए। तो इसी को सची माता देखे, देख कर आके गदाधर का हाथ पकड़ करके बोले, गदाधर मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, आप मेरे निमाई को छोड़ करके कहीं मत जाना, हमेशा उनके साथ रहना। हमारा तो होश उड़ गया था, कोई बुद्धि नहीं लग रहा था, कैसे संभाले, हम तो दूर खड़े थे डर के मारे। लेकिन तुम इतने बुद्धिमान हो, इतने चतुर हो, ऐसे संभाल लिया,
ऐसे केस में बड़े इजीली हैंडल कर लिया आपने, तो मेरे निमाय को छोड़ करके बिल्कुल ना जाना, इसी को कहते हैं। वही जो कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण और राधा रानी के जो सास और ननंद आदि होंगे, जो उनके जो अभिभावक गण थे, वो कृष्ण के पास छोड़ते नहीं थे, बड़े आकट करके रखते थे, नहीं जा सकता, नहीं मिल सकता, कलंकिनी है, गाली देते थे। राधा रानी रो रो कर हताश हो जाती थी, कृष्ण भी हताश है, छिप छिप कर मिलना भी बड़े संभव नहीं हुआ पाता था। और राधा रानी मन में रो रो कर सोचते थे, क्या मेरा दुर्दैव है, कृष्ण के मिलने कोई चांस ही नहीं मिलता, कितने कैसे करूं। तो मन में बैठकर सोचती थी, अगर मैं पुरुष होता तो मुझे इस प्रकार के कष्ट सहन नहीं करना पड़ता, ये क्यों स्त्री शरीर मिला मुझे, स्त्री शरीर के कारण मुझे इतने कलंकिनी, इतने मुझे ब्लेमिश, क्या मुझे वो बदनाम सहन करना पड़ता है, इतने कष्ट, मेरा कुछ काम नहीं बिगड़ता, इतने दुख होना पड़ता है। अगर मैं पुरुष होता तो सारे ग्वाला जाते हैं कृष्ण के साथ, हमेशा सुबह से शाम तक जंगल में घूमते रहते हैं, और मैं जा नहीं पाता हूँ, तो इसलिए राधा जी मन में डिसाइड की, मैं फिर ये स्त्री शरीर नहीं ग्रहण करूँगी, ये बड़े गड़बड़ होता है, मुझे पुरुष शरीर में आना चाहिए, तब मैं प्रभु का संग प्राप्त करूँगा। तो इसलिए राधा रानी की इच्छा था, और संग प्राप्त करना महाप्रभु की इच्छा था कि मुझे मेरे बड़े बूढ़े जितने मेरे अभिभावक हैं, वो मुझे ज़बरदस्ती बयान कर रहे हैं मेरे प्राणनाथ से मिलने के लिए। अब पुरुष होता तो मुझे बयान नहीं करते, मुझे बोलते हाँ उनके साथ रहो, मैं कभी फिर इस रूप में स्त्री शरीर में नहीं आना चाहता हूँ, नहीं आना चाहती हूँ। तो उन्हीं की इच्छा के अनुसार से राधा रानी फिर पुरुष रूप में गदाधर पंडित के रूप में आए, और वही महाप्रभु के जो अथॉरिटी, गदाधर के जो अभिभावक सची माता आदि, उनको बुला करके रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि आप उनको छोड़कर मत जाना, हमेशा उनके साथ रहना। जो पहले लीला में बयान करते नहीं आ सकते हो, नहीं देख सकते हो, बैठ नहीं सकते उनके पास में, अभी बोलते नहीं छोड़कर मत जाना, ये है भाव उनका पूरा करता। तो इस प्रकार गदाधर पंडित नवद्वीप लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु के बिल्कुल साथ थे। संन्यास लीला को भी उनको ही बताते, 5 आदमी से उनमें थे। तो जब संन्यास लेकर के महाप्रभु पुरी के अभिमुखे चलने लगे, गदाधर भी साथ में थे। गदाधर आजन्म ब्रह्मचारी है, उसने वो साथ गौर प्राण थे, इसलिए गौरांगर गदाधर जीवन गदाधर प्राणनाथ गौरांग, गदाई गौरांग, गदाई जीवन ऐसे कहा जाता है। तो गौरांग महाप्रभु उनके साथ में गदाधर पंडित भी आए थे चल करके, और आ करके पुरी में रहे। पुरी में कुछ दिन रहने के बाद महाप्रभु धीरे धीरे उनके सारे संगी को बुला करके भेज दिए, बोले जाओ प्रीचिंग मूवमेंट है। मैं माँ की आज्ञा से यहीं रह गया, संन्यास लिया, लेकिन सभी हम यहीं रहेंगे तो प्रचार कैसे होगा, हमारे उद्देश्य प्रचार करना है। नित्यानंद को बोले आपका आना जरूरत नहीं, आप हमसे आपको मिलना क्या जरूर, बाकी लोग भक्त साल में एक बार भले आए, आप बिल्कुल मत आना, आप जाओ प्रीचिंग मूवमेंट लेके जाओ। और बाकी ऐसे भेजने लगे। गदाधर पंडित बोले अरे लगता है मुझे ही भेज देंगे, तो सबको पकड़ पकड़ के बोलते जाओ वापस, अगर मुझे बोलेंगे जाओ, मैं तो उनके आज्ञा को मना उल्लंघन नहीं कर सकता, और उनके छोड़कर जी भी नहीं सकता, उनके बिना मेरा जीवन जीना असंभव है, गौर बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, वो गौर के आज्ञा को अमान्य भी नहीं कर सकता, वो करूँ क्या। अगर उनके सामने जाओ, अगर बोल दिया गदाधर तुम जाओ, बस गया तो जा भी नहीं सकता हूँ और रह भी नहीं सकता हूँ, क्या करूँ। तो इसलिए वो जानबूझ करके 2-3 दिन गए ही नहीं, जबकि कोई नहीं थे महाप्रभु के सेवक, उनके जरूरी था महाप्रभु के पास जाना, लेकिन डर के मारे नहीं जाते थे, शायद मुझे बोल दे मैं जाऊँ करके, तो इसलिए महाप्रभु के पास गए ही नहीं डर के मारे। महाप्रभु गदाधर आ नहीं रहे थे, छिप करके रहे और सोच रहे थे क्या करूं, दिन रात पश्चात होकर सोचे कि हाँ मैं भी संन्यास लूँ। एक संन्यास जैसे महाप्रभु लिए घूम रहे हैं सन्यासी लोग सब त्याग करके, एक और संन्यास विधि है जिसको कहते हैं क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र संन्यास का नियम है, क्षेत्र जिस क्षेत्र में संन्यास लिया, इस क्षेत्र को छोड़कर बाकी सारे क्षेत्र से संन्यास ले, बाकी कोई क्षेत्र नहीं जा सकते, मृत्यु पर्यंत इसी क्षेत्र में रहना होगा। तो बिना परमिशन लिए पूछे महाप्रभु से पंडित बुला करके क्षेत्र संन्यास ग्रहण कर लिए, और डंडा धारण करके संन्यास वेश लेकर के महाप्रभु जय प्रणाम की। महाप्रभु अरे गदाधर ये क्या हो गया ना, माफ़ कीजिए थोड़ा जल्दी में था, वो संन्यास ले लिया, आपको पूछ नहीं पाया, मैं क्षेत्र संन्यास पता है क्षेत्र संन्यास का नियम क्या है,
ना हाँ बोलते रहे थे क्षेत्र छोड़कर नहीं जाऊँगा, बस यहीं रहना पूरी, फिर कहीं नहीं जाना कहीं ना, जब आप ही यहीं रहते हैं तो मैं भी यहीं रहूँगा और क्या, अच्छा हुआ आप छोड़कर मुझे जाना ही नहीं था, तो ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे भी आपका संग मिलेगा। तो महाप्रभु तो आग्रह कर लिए, कुछ बोले नहीं, लेकिन भगवान तो भगवान है, भक्त वत्सल है, भगवान भक्तों को पोषण करना उनका धर्म है। बोले तभी जमान में तो बुक डिस्क्रिप्शन था नहीं, कोई विग्रह भी थे नहीं, बोले हाउ टू एंगेज, ये रह गया इधर, प्रीचिंग करना बाहर नहीं जाएगा, उसको एंगेज कैसे करूँगा, बिना एंगेजमेंट में भजन सब नहीं कर सकते, इसे फिजिकल एंगेजमेंट वेरी मच नेसेसरी। कोई भक्त केवल बैठ करके करूँगा ये नहीं चलेगा, सभी हरिदास ठाकुर नहीं है, तो इसलिए शारीरिक सेवा की आवश्यकता है, फिजिकल एंगेजमेंट। तो महाप्रभु सोचने लगे, बोले गदाधर तो नियम लेकर बैठ गया यहाँ संन्यास क्षेत्र संन्यास लेकर के, उनको तो कोई सेवा में लगाना पड़ेगा, वो कोई सेवा ही नहीं है, अभी क्या करूँ। तो जगन्नाथ मंदिर में सेवा कर ही नहीं सकता जा करके। तब भगवान फिर स्वयं अपने इच्छा से वो जाते थे, दोपहर के बाद महाप्रभु प्रतिदिन जाते थे तोटा, तोटा मतलब बगीचा है, समुद्र किनारे एकांत जगह था, बगीचा में जाकर बैठ करके वहीं समुद्र को जमुना समझ रहे थे, वो पीछे चटक पर्वत गोवर्धन समझ रहे थे, वहाँ की बहुत बड़ा वटवृक्ष था और पुलांग की पुन्नाग की बड़ा बगीचा था। बोलते थे ये वृंदावन है, ये जमुना जी है, गोवर्धन है, वृंदावन, तब तो ये वटवृक्ष तो बंसी बट है, तो बंसी बट इधर रासस्थली, तो रास बिहारी तो अवश्य होना चाहिए, यहाँ गोपीनाथ तो अवश्य होंगे। ऐसे विलाप करते हुए महाप्रभु मूर्छित हुए, हाँ गोपीनाथ हो गोपीनाथ करके, और बालू ऐसे खोदने लगे समुद्र किनारे, और वो मयूर चंद्रिका दिखाई पड़ने लगा। धीरे धीरे गदाधर पंडित बोले ये क्या है, और दोनों मिलकर खोदने लगे। धीरे धीरे विशाल गोपीनाथ विग्रह प्रकट हुए, और उनके साथ में ललिता राधा रानी भी प्रकट हुए। तो इसे विग्रह प्रकट किए, तो महाप्रभु बोले गदाधर मेरा इच्छा पूर्ण करोगे ना, क्या विग्रह प्रकट हुए, उनके सेवा का दायित्व आप ले लो, आप लो। हम जानते हैं आज भी हम इस्कॉन भी और जो भी बड़े बड़े संस्था बड़े बड़े हो गए, लेकिन जहाँ डिटी इंस्टॉलेशन हो जाता है तभी पूछते हैं अथॉरिटी को, प्रभु जी एक आध पुजारी भेज देना, बड़े समस्या। हाँ पुजारी की समस्या हर जगह रहता ठाकुर जी के सेवा का। जब गोविंद भगवान को रूप गोस्वामी स्थापना किए थे, महाप्रभु को चिट्ठी लिखे, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन चिट्ठी के साथ नोट में लिखे थे पुजारी की समस्या है, भेज देना किसको पुजारी के लिए। महाप्रभु को रूप गोस्वामी लेटर लिखे, तभी काशी पंडित को भेजे फिर महाप्रभु। तो जो भी हो, तो पुजारी की समस्या तो जानते हैं, डीटी डिपार्टमेंट अकेला जब करें सारे सेवा और बड़े विग्रह हैं और कोई फंड नहीं है, सबको कलेक्शन करना है, श्रृंगार भी करना है, अर्चन भी करना है, कुकिंग भी करना है, पूजा भी करना है, उनके लिए मांग कर लाना है, सारे एक ही सिंगल हेड डिपार्टमेंट, आपको सब करना है। गदाधर पंडित का हाल खराब, बोले क्यों मेरे रहा इधर संन्यास लेकर, बड़े गलती किया, मैं जाता प्रचार करता तो साल में आता मिलता बहुत अच्छा था, ये तो फंस गया बुरी तरह से, यहाँ से छोड़कर जा, यहाँ तक कि तोटा गोपीनाथ छोड़ करके उन्होंने राधाकांत मठ गंभीरा आने के लिए फुर्सत नहीं होता था, आ नहीं पाते थे, इससे सो बिजी, ऐसे सेवा में फंसा दिए महाप्रभु। उनको बोले रहना चाहते क्षेत्र संन्यास लेके करो सेवा, ऐसे में फंसा दिए, और भजन क्या करें सेवा करें, यही से बिजी कर दिए उनको। तो नित्यानंद प्रभु एक बार आए थे, और कपड़ा नहीं था, कहाँ से जुटाए, नित्यानंद प्रभु लेकर आए थे वो बंगाल से। महाप्रभु मना किए थे नित्यानंद प्रभु आने के लिए, लेकिन फिर भी उनके आदेश को अमान्य करके बोले मैं महाप्रभु के पास मिलने नहीं जाऊँगा, मैं सुना कि गोपीनाथ प्रकट हुए, गोपीनाथ दर्शन के लिए जाऊँगा। और नित्यानंद प्रभु सीधा बंगाल से चल कर के अकेले गोपीनाथ दर्शन के लिए आ गए, गंभीरा मठ नहीं गए। और उन्होंने बोले मैं जब ठाकुर जी के दर्शन करने जाता हूँ तो कुछ तो भेंट लेकर जाना चाहिए। पहले आज भी लोगों का मन में ये संस्कार है, कभी कोई साधु संत या कोई भगवान के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु तो आदि गुरु है, वही तो सिखाएंगे सबको। बोले खाली हाथ मैं कैसे जाऊँ, कुछ तो लेकर जाना चाहिए। और वो स्वयं अवधूत भिखारी है, वो कहाँ से क्या लाएंगे तो मांग मूंग करके पता नहीं कहाँ से जुगाड़ जंतर करके 1 पीस क्लॉथ और 2 किलो चावल लेकर आए थे। हाँ ये भेंट लेकर आए और पहुँचे। गदाधर पंडित तो बोले तो कोई नहीं आते, कौन आएगा इधर, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु पहुँचे, बड़े इसमें मिलन हुआ। फिर बोले मैं ये लेकर आया हूँ और मुझे बहुत भूख लग रहा है, अब ऐसा करो थोड़ा व्यवस्था कर दो, भोग लगाओ। और वो एक कपड़ा भी लेकर आया, कपड़ा बना। और गदाधर पंडित बोले देखो आज कपड़ा ही फट गया, नहीं है कोई आउटफिट नहीं है, ठाकुर जी का कोई वस्त्र नहीं है, आप ऐसे वस्त्र लेकर आए हैं और मैं अभी भिक्षा करने में गया भी नहीं, क्या सोच रहा था, अन्न भी लेकर आए, आज तो फीस्ट होगा, आप भी आ गए।
तो बोले मैं स्नान करके आता हूँ और जब कुकिंग करना, भूख लगता है, प्रसाद मांगना अवश्य करता हूँ। तो गदाधर पंडित स्नान करा चुके थे गोपीनाथ जी को, तो जो कपड़ा लेकर आए थे नित्यानंद प्रभु, जो कपड़ा को जो पहना दिए, इतने सुंदर बिफिटिंग ड्रेस था वो, क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो बलराम है ना, बड़े भाई है, और छोटू का उनको साइज पता है, उनका क्या पसंद है, कौन सा साइज, क्या ड्रेस, कौन सा कलर, उनको बिल्कुल बिफिटिंग वही ऑर्डर करके लेकर आए थे। उनके छोटे भाई का पसंद उनको पता था, वही ड्रेस बिल्कुल लेकर आए थे। इतने सुंदर श्रृंगार हो गया उस ड्रेस को पहन करके, और जो चावल लेकर आए थे उनको बनाने लगे, कुकिंग करने लगे। और तभी कौन सा मिट्टी के एक बर्तन था, उसमें बनाने लगे, भात बन गया। बोले भाई आज गेस्ट आए नित्यानंद प्रभु जैसे, और भगवान को विशेष भोग लगाऊंगा, वो कोई सब्जी वब्जी नहीं है, खाली राइस। तो कि इमली के पेड़ था, उसमें चढ़ करके कुछ कोमल कोमल न्यू इमली लीफ के कुछ नोच करके ले आए, और उसमें मिर्ची और नमक डाल करके उसको पीस करके एक चटनी बना दिए। और कुछ साग उगा था, ऐसे ही जंगल में उगता है साग, कुछ साग उखाड़ कर उसको बॉयल करके 3 आइटम हो गया, राइस, स्पिनाच मतलब साग, और एक कच्चा इमली पत्ता के चटनी, 3 आइटम महाफिष्ट राजभोग। और गोपीनाथ को ऑफरिंग किए। अब केला के पत्ता था, कोई बर्तन तो था नहीं, लगा करके जो नित्यानंद प्रभु को सर्विंग कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु बोले देखो मुझे तो बहुत भूख लग रहा है, मैं तो खा लूँगा, जो बचेगा तो पा लेना। ना आप पाइए, आप पाइए ना, ऐसा करो, बोले दरवाज़ा बंद करो। बोले क्यों? ना कोई साथ, ना कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है यहाँ निर्जन स्थान, क्यों डर रहे हैं? अरे बाबा मैं बोलता हूँ बंद करो। नहीं, अंदर से कुंडी लगा दो। ना क्यों? ना मुझे खाने का समय में कोई साथ, ना कोई आता ही नहीं ना, फिर भी आप बंद लगाओ, कौन अंदर से कुंडी लगाओ, क्योंकि शायद कोई आ जाएगा खाने के समय में, फिर मेरे कम पड़ेगा, जितना अभी चावल लाया मैंने, मुझे इतने भूख लग रहा है, मेरे कम पड़ेगा, और कोई दूसरा आएगा तो फिर कैसे मेरे पेट नहीं भरेगा, मैं भरपेट खाना चाहता हूँ आज। तो बाध्य करके कबाड़ बंद करा दिए। तो गदाधर पंडित बोलते थे बेफिक्र रहिए, कोई नहीं आता, बुलाने पर भी कोई नहीं आता निर्जन स्थान में, आप बैठकर पाइए प्रसाद। तो प्रसाद जैसे परिवेषण किए, नित्यानंद प्रभु महाप्रसाद गोविंद शुरू नहीं किए, दरवाजा खटखट होने लगा। अरे कौन? अभी तो कोई नहीं आता। बोले देखा कोई आ रहा है। और दरवाजा खटखट नहीं हुआ, पीटने लगे दरवाजा, आवाज़ हुआ कि गदाधर दरवाजा खोलो। चमके, वो तो महाप्रभु की आवाज़ है, प्रभु कैसे आ गए? नित्यानंद प्रभु मैं जानता था वो आएगा, खोलना नहीं दरवाज़ा, खोलना नहीं, मुझे खाने नहीं देगा। गदाधर प्रभु मैं कैसे? महाप्रभु बोले दरवाज़ा तोड़ डालूंगा, जल्दी खोलो। आओ तो खोलना है दरवाज़ा को, खोल दिए। महाप्रभु अंदर आ गए। बोले क्या इतने खूबसूरत वेश आज गोपीनाथ का? अरे श्रीपाद आप बैठे हैं भोजन में, इतने सुगंध है। बोले तुमको तो बुलाने कैसा है? मुझे बुलाएगा क्या? मैं सो नहीं पाया, भोजन तो कर चुका था, मैं रेस्ट कर रहा था भोजन के बाद, लेकिन इतने सुगंध है जो अन्न का, इतने स्मेल, गुड स्मेल, इतने सुगंध आ रहा था, मैं सो नहीं पाया। महमह सुगंध इसी अन्न का, इस सुगंध का पीछे पीछे दौड़ करके आया पागल होकर के कि इतने सुंदर भोजन का स्वाद कहाँ से आ रहा है। मैं माता जशोदा जो मुझे खिला रही थी तब ऐसे टेस्टी प्रसाद खिला रहा था, कौशल्या भी कभी खिला रही थी, ये आइटम आज कहाँ से आया, ये आइटम आज कौन बनाया, इतने वही सुगंध कहाँ से मिल रहा है। पागल होकर दौड़ कर आया सुगंध के पता लगाते लगाते, और वो लगता है कि इसी घर के अंदर गंध। अभी पता चला कि आप लेकर बैठे थे तेल के सारे। तब गदाधर पंडित बोले प्रभु ऐसी बात है, ये जो कपड़ा भी उन्होंने लाए ना। अच्छा भाई साहब लाए कपड़ा, इसीलिए मेरे मन के हिसाब से अब बड़े श्रृंगार अच्छा है। और पसंद बोले चावल ही उन्होंने लाए, उन्हीं के चावल में बनाना। हाँ समझ गया, नहीं तो यहाँ के चावल तो है नहीं, तो इम्पोर्टेड है, उन्हीं की पता है मुझे जो चावल पसंद है वो लेकर आए हैं, और स्वयं बैठ के कैसे मुझे तो खाना है। अरे नित्यानंद चावल लाएंगे और गदाधर बनाएगा और गोपीनाथ उसको ग्रहण किए प्रसाद के रूप में, मेरा उसमें भाग नहीं है। मुझे बिना बुलाए मैं तो ज़बरदस्ती खाऊंगा, कैसे नहीं खाऊंगा। अब बैठ गए जा करके नित्यानंद प्रभु के पास, वो बोलते हैं भैया मैं भूखा हूँ, रहने तो मैं खा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। वो बोलते मुझे तो खाऊंगा। दोनों भाई के झगड़ा, प्रेम कलह, बड़े अच्छा वर्णन है चैतन्य भागवत में। कानन विलास करके एक पर्व है जिसमें नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के झगड़ा चल रहा है। एक पत्तल में बैठ करके छीना छीनी, ये उसमें खा रहा है, वो नहीं खा रहा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, छीना झपटी करके खा रहे हैं। गदाधर पंडित इस अत्यंत सुखद लीला को उन्होंने देखे थे, उसको वो टोटा गोपीनाथ में ऐसे लीला हुआ था सुंदर। तो आज गदाधर पंडित की तिरुभाव तिथि है,
तो तिरुभाव के बारे में जैसे मैं बता रहा हूँ कि पंच तत्व जो हैं, किसी का भी समाधि कोई नहीं मिलेगा, और सब जैसे आए थे ऐसे ही गए, सब भगवत तत्व है। भगवान का भी समाधि होता है ना क्या? वो महाप्रभु भी गोपीनाथ में प्रकट हो गए, वो बांकराय में चले गए, नित्यानंद प्रभु अद्वैत महाप्रभु कीर्तन करते गए, और शिवास ठाकुर पता नहीं बोले डाके वो भी कहीं से गए, किसी पता नहीं, किसी के समाधि समाधि कुछ नहीं, गदाधर पंडित की भी कुछ नहीं समाधि समाधि नहीं है। गए ज्येष्ठ शुक्ल अमावस्या तिथि में गए, लेकिन वो कैसे गए, क्या हुए कुछ नहीं पता, हला पता ऐसे ही चले गए, ऐसे अद्भुत। तो केवल इतना वर्णन है भक्ति रत्नाकर में पता चलता है कि महाप्रभु तो उनके प्राणनाथ थे ही। महाप्रभु का दैन्य जीवन था। एवरीडे सुबह प्रातःकृत्य के बाद जगन्नाथ दर्शन करते थे। जगन्नाथ दर्शन घंटों करके उपल भोग प्रसाद ले करके जाते थे, हरिदास ठाकुर को मिलते थे, फिर रूम में जा करके प्रसाद रख करके मध्याह्न स्नान करने जाते थे, कुछ चंडी फंडी करके मध्याह्न स्नान करने समुद्र जाते थे। समुद्र स्नान के बाद लंच लेते थे, थोड़ा विश्राम करने के बाद सेकंड हाफ में तोटा में जाते थे, वो बगीचा में जाते थे। तो उनका क्लास हुआ करता, जैसे हमारा इस्कन का डेली प्रोग्राम है मॉर्निंग भागवतम क्लास, तो उनका मॉर्निंग भजन होता था महाप्रभु, क्योंकि तभी जमाने इलेक्ट्रिसिटी लाइट फाइट था नहीं, सब भजनानंद महात्मा सुबह सुबह भजन करते थे। और क्लास होता था दोपहर के बाद में, दोपहर के बाद में पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, जब तक सरकारी लाइट सूर्य लाइट जब तक रहेगा तब तक क्लास चलते रहेगा, वही करते थे। तो महाप्रभु और सारे पार्षदगण के साथ भागवतम पढ़ने के जाते थे तोटा में, और भागवत क्लास ऑलवेज गदाधर पंडित देते थे, बड़े सुरीली गाते थे, वही पढ़ के सुनाते थे और महाप्रभु और पार्षदगण सुनते थे। उसमें भी ध्रुव प्रहलाद चरित को सैकड़ों बार महाप्रभु सुनना चाहते थे बोल बोल करके। तो महाप्रभु एक दिन गए, गदाधर पंडित साथ कुछ बातचीत किए क्लास शुरू होने से पहले, और अंदर गए दर्शन करने गोपीनाथ को, गए और वापस आए नहीं, सब बैठे। महाप्रभु आएंगे क्लास शुरू होगा, आए ही नहीं। महाप्रभु अंदर गए और आए नहीं, सब दौड़ कर क्या हुआ दौड़ कर गए और जाके देखे कि महाप्रभु के अंग वस्त्र पड़ा हुआ है गोपीनाथ के सामने, महाप्रभु नहीं अंतर्धान। वो तो गए, तो अंग वस्त्र को समाधि दिया गया महाप्रभु के अंग वस्त्र। वो तोटा गोपीनाथ मंदिर के अंदर एक छोटा सा मंदिर है, आप देखेंगे महाप्रभु के अंग वस्त्र के समाधि है। तो महाप्रभु चले जाने के बाद में गदाधर हा गौरांग करके बारंबार मूर्छित होकर पड़े, और उसी दिन से उनके दोनों आंख से गंगा जमुना के धारा की तरह आंसू बहने लगा, कंटिन्यूस आंसू बहने लगा। गौर शब्द उच्चारण भी नहीं कर पाते थे, ऐसे उनके मन और शरीर दोनों दिन पर दिन क्षीण होने लगा और बचना मुश्किल हो गया उनके लिए। उनके एक शिष्य थे मामू ठाकुर, वो आकर के गोपीनाथ की सेवा पूजा में सहायता करने लगे। ऐसे किंवदंती है कि गोपीनाथ को पूजा छोड़ दिए, बोले क्यों गोपीनाथ, बोले क्यों मेरा पूजा नहीं करते हो? कोई बोलते मामू ठाकुर के लिए, कोई बोलते गोपीनाथ के लिए, गदाधर पंडित के लिए। गदाधर पंडित बोले देखो मैं अकाल वृद्धत्व आ गया, महाप्रभु चले जाने के बाद मैं खड़ा ही नहीं हो पाता, इतने बैंड हो गया। यदि महाप्रभु से कम उम्र के थे, महाप्रभु 48 ईयर्स में चले गए, और उनसे तो वो कम से कम 45-46 होगा, लेकिन इतने कम उम्र में इतने वृद्धत्व नहीं आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल बैंड हो गए। बोले मैं आपको माला भी नहीं पहना सकता हूँ, मैं क्या आपको पूजा करूँ, और पूजा नहीं कर सकता मैंने। गोपीनाथ बोले भैया जब तक हो तब तक मुझे माला पहनाओ, तुम खड़ा नहीं हो सकता, मैं बैठ जाता हूँ। तो पूरे विश्व में एक ही विग्रह है, हाँ देखेंगे गोपीनाथ वो बैठे हुए हैं, बाकी कहीं विश्व में कोई अल्टर में देखेंगे नहीं, ठाकुर जी बैठे हुए हैं। ओनली वन अल्टर है पूरे विश्व में जहाँ गोपीनाथ बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल आसन लगाकर बैठे हुए हैं। ये कहते हैं कि गदाधर पंडित से सेवा लेने के लिए, राधारानी की माला पहनने के लिए कौन आसान नहीं करेगा। तो उनके हाथ से माला पहनने के लिए गोपीनाथ बैठ गए, विग्रह ही बैठ गए, बोले चलो आप ही पहना माला जब तक आप हो। तो इस प्रकार से गदाधर पंडित उनको सेवा करते थे, और पूरी में वही तोटा में रहते थे, और बाहर भी नहीं आते थे, बिल्कुल बोलना बंद कर दिए, खाना पीना बंद कर दिए। केवल उनके शरीर में एक ही सिम्टम रहा, लिविंग सिम्टम, कि दोनों आँख से आंसू बहता है। बाकी कोई लिविंग सिम्टम भी शरीर में नहीं रहा, शून्य शरीर धारण था। केवल एकमात्र पहचान था कि अभी आँख से आंसू बह रहा है, मतलब जान है, केवल दोनों आँख से आंसू बह रहा था। इसी स्थिति में रहते थे। श्रीनिवास आचार्य वो गए, उनको बोले थे कि अब जाओ भागवत पढ़ना है तो गदाधर से भागवत पढ़ करके आओ। तो उन्होंने गए थे, श्रीनिवास आचार्य चलते चलते बंगाल से जब पुरी पहुँचे
जा कर के गदाधर पंडित के पास पहुँचे, जाकर प्रणाम किए, श्रीनिवास को गोद में ले करके रो रो करके मूर्छित होने लगे, गोर गोर हो करके। और बोले पढ़ाने लिए भागवत पढ़ा, बोले भागवत क्या पढ़ाए? वो इतने रोते थे, भागवत पोथी से भीग करके बिल्कुल ना अक्षर फक्कर मिट गया था, हस्तलिखित था सब हाथ में, मिट गया था सारे। वो बोले मैं पढ़ाऊँगा कैसे, कुछ है ही नहीं, पढ़ा नहीं जाता मेरे से, एक तो आँख खोलना मुश्किल है और अक्षर भी मिट गया है, कैसे पढ़ाऊँगा? रो धो करके बोले ऐसे किंवदंती है कि बोले कि तुम जाओ दूसरा कोई भागवत कपि लेकर आओ, मैं पढ़ा दूँ शायद आपको। वो आ करके दूसरे कपि श्रीनिवास आचार्य बंगाल से जुगाड़ करके हथ लेकर जा रहे थे, जाजपुर से खबर चला कि वो जा चुके हैं, मिलने है ही नहीं। तो फिर स्वप्नादेश हुआ कि तुम जाओ वृंदावन जीव गोस्वामी से पढ़ना। गदाधर तो गए, तो फिर वापस आए जीव गोस्वामी पढ़ने के लिए। तो ये ज्येष्ठ शुक्ल अमावस्या उसी तिथि में हा गौर हो करके टोटा गोपीनाथ के अंदर शरीर तो पहले से क्षीण हो चुका था, कुछ भी नहीं था, अस्थि कंकाल सार केवल हड्डी के ऊपर चमड़ी था, और केवल रो रहे थे। कभी कभी मुख से केवल शब्द गौर गौर करके शब्द आता था, बाकी कुछ नहीं था। इसी दशा पर रह करके इसी तिथि में गौरगत प्राण गदाधर उनके नित्य लीला में प्रवेश कर गए थे। इस प्रकार से गदाधर पंडित के स्थान उनको महाप्रभु ने गोपीनाथ की सेवा के दायित्व दिए और आजीवन वही रह गए। एक और सुंदर लीला था ऐसे कि जब महाप्रभु ने बीच में वृंदावन जाने के लिए विचार किए, वृंदावन जाने चले तो उनके साथ में कई लोग चले, हम भी चलेंगे, हम महाप्रभु से बोलो चले सब चलेंगे। गदाधर पंडित सुने कि महाप्रभु वृंदावन जाना चल रहे हैं, आकर बोले कि मैं सुना कि वृंदावन जा रहे हैं ना मैं भी जाऊँगा। अरे तुम कैसे जाओगे? तो गोपीनाथ की सेवा, यू आर दी ओनली पर्सन, नो अदर पुजारी दे कोई और है नहीं डिपार्टमेंट में, तू अकेले हो तुम कैसे जाओगे गोपीनाथ की सेवा? और दूसरा उसके ऊपर क्षेत्र संन्यास लिया है, क्षेत्र संन्यास धर्म है, गोपीनाथ का सेवा पूजा, तू कैसे जाएगा? तो गदाधर पंडित के आंसर था महाप्रभु के सामने, सारे उनके पार्षदगण के सामने, बोले गोपीनाथ के सेवा और संन्यास धर्म आग में जाने दो, वो चूल्हा में जाने दो मैं तो जाऊंगा आपके साथ, आपके चरण के पास रहने से मेरा करोड़ों गोपीनाथ के सेवा का पुण्य प्राप्त होगा, और बाकी ये धर्म पालन करना मुझे क्या, आपके सेवा आपके चरण के पास रहूँगा, सारे धर्म वहीं पालन हो जाएगा। ये संन्यास धर्म क्षेत्र संन्यास, उसको मारो दो, चूल्हा में जाने दो, आग में लगने दो, ये गोपीनाथ की सेवा मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आपके साथ जाऊँगा। महाप्रभु बोले तुम जिद्दी पकड़ दो मेरे साथ जाने के लिए, लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, बोले देखो उनके फॉलोअर है, उन्हीं के पार्टी के लोग हैं और ये गलत अधर्म काम कर रहे हैं, ये कैसा काम कर रहे हैं, क्षेत्र संन्यास धर्म छोड़ दिए, ठाकुर जी की सेवा पूजा छोड़कर भाग गए, ये क्यों? बोलेंगे अच्छा तुम साथ में लेना नहीं चाहते हो ना, मैं कैसे लूँगा, मैं नहीं लूँगा साथ में। बोले ठीक है मैं नहीं जाऊँगा आपके साथ, लेकिन मैं जाऊँगा, आपके पार्टी नहीं, मेरा सेपरेट ग्रुप जाएगा, आपका ग्रुप अलग है, हमारा ग्रुप अलग है, तुम्हारे ग्रुप को ना मैं अकेला एकेश्वर में जाऊँगा, हम अकेले जाएंगे, आपके ग्रुप में जाओ 500 लोग, मैं अकेला ग्रुप हूँ। और 200 मीटर पीछे पीछे अकेले चलते थे, महाप्रभु का ग्रुप आगे आगे, वो अकेले गदाधर पंडित उनके पीछे पीछे, एक ग्रुप सेपरेट ग्रुप, ओनली 1 पर्सन, वो चलते थे। और लगभग भुवनेश्वर लगभग 60 किलोमीटर है, कटक और 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर पैदल में चलते चलते उनके पीछे पीछे आए। जब पूरी कटक में आकर महाप्रभु रुके 2-3 दिन काटजोड़ी और महानदी के बीच में, तो वो भी अलग से रहे थे, 200 मीटर पीछे अपना कैंप अलग डाले थे महाप्रभु के कैंप, उसके 200 मीटर पीछे गदाधर का कैंप, वो अकेले थे वो अकेले पर्सन एक ग्रुप, और ये उनके 500 आदमी के ग्रुप अलग थे। तो एक दिन महाप्रभु बुलाए उनके सेवक को, भेजे, बोले गदाधर को बुलाओ। वो आकर बोले प्रभु आपको बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे? नहीं बुला रहे होंगे, मेरा अलग ग्रुप, मुझे क्यों बुलाएंगे, हमारा तो कट्टी है, हमारा नहीं मिलता। बोले जा कन्फर्म करके आओ। वो जाके पूछा, नहीं बोलो जाके मैं बुला रहा हूँ। तो आप नहीं आपको बुला रहे हैं। तो गदाधर पंडित गए, बोला अच्छा बुला रहे हैं मुझे ना? हाँ। तो गए, गुस्सा तो था, मैं बिल्कुल अभिमान करके मुँह लेकर बैठ गए। मुझे बुलाया आपने? मुँह नीचे करके बुलाया आपने? ना हमें बुलाया। किस लिए बुलाया? क्या काम है? मेरा तो अलग है आपसे। किस लिए बुलाया? ना मैं यही पूछने के लिए बुलाया कि आप मेरे पीछे पीछे वृंदावन जा रहे हो ना? ना आपके साथ नहीं जा रहा हूँ, सारे क्रिटिसिज्म जो भी है मुझे लोग कहेंगे, आप क्या, आप जाओ ना, मैं तो अलग जा रहा हूँ पीछे पीछे, आप क्या क्या पड़ी है चिंता? ना मैं इसके चर्चा नहीं कर रहा हूँ। महाप्रभु बोले फिर क्या? ना मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम ये जो वृंदावन जाना चाहते हो, यात्रा कर रहे हो, अकेले करे एकेश्वर जा रहे हो, जो भी कर रहे हो,
इस यात्रा का उद्देश्य क्या? आपके कार्य का उद्देश्य मेरे प्रसन्नता है या? बस गदाधर पंडित कूद करके महाप्रभु के मुख में हाथ दिए और बोलो मत, बोले और आगे मत बोलो। भिटो बोले इतनी तो बड़ी बात कह दिया आपने, आपको क्या पता नहीं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरा जीवन का तो एकमात्र उद्देश्य है केवल आपके प्रसन्नता के लिए मेरा इंद्रिय चालना, कुछ भी कर रहा हूं आपके खुशी के लिए। और मुझे पूछ रहे हैं आपने मैं क्यों कर रहा हूं? तो मुंह में हाथ दिए, लेकिन महाप्रभु फिर उनके हाथ को पकड़ कर बोले अगर ऐसा है, अगर मेरे प्रसन्नता चाहते हो तब मैं चाहता हूँ वापस जाओ आप। बस वहीं से धड़ाम करके मूर्छित होकर गिरे, मूर्छित होकर गिर के पड़े थे उन्होंने। और महाप्रभु तुरंत उठ करके चलने जाने पहले सार्वभौम पंडित को बुलाया, वो भी गए थे। बोले उनको इसी मूर्छित अवस्था से उठा कर लेके जाओ नाव में लोड करके, नहीं तो अगर फिर चेत आ जाएगा फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। यही सेंसलेस अवस्था में कोमा में है, उसको लेके जाओ। और इसी मूर्छित अवस्था में वो उठा करके नाव में लोड करके वापस लेकर आए सार्वभौम पंडित। और रास्ता में मूर्छा आया, रो रो करके उन्होंने संतरांदिर को वापस लेकर के आए। और महाप्रभु वृंदावन जा नहीं पाए, वापस आए रामकली से। गदाधर पंडित आकर मिले, प्रभु वृंदावन दर्शन ना, नहीं वृंदावन जा नहीं पाए, वापस आए। मतलब क्यों ना, कैसे जा पाऊंगा जब आप दुखी होकर के मुझे छोड़ेंगे, मुझे हंसी खुशी से परमिशन नहीं दिए तो मैं कैसे जा सकता? आप जैसे भक्त को दुखी करके भगवान का भी कार्य सिद्धि नहीं हो सकता, और दूसरे का क्या कार्य सिद्धि होगा? ये सिद्धांत भगवान स्थापना किए। और गदाधर पंडित बोले नहीं नहीं नहीं, आप साक्षात ईश्वर है, इसे क्यों बोलते? नहीं नहीं, मैं ईश्वर ही बोल रहा हूँ। आप जैसे भक्त को दुखी करके किसी का कार्य सिद्धि नहीं हो सकता। आप जब कभी हंसी खुशी से मुझे परमिशन दोगे तब मैं वृंदावन जा, ना आप जाइए जाइए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर सेकंड टाइम उनसे परमिशन ले करके महाप्रभु वृंदावन आ पाए। तो ऐसे गदाधर पंडित जिनके प्रकट हुए थे गौरांग के लिए, जीते थे गौरांग के लिए, जो भी कुछ थे गौरांग के प्रश्न तक। तो इसलिए गौर गदाधर। और आज भक्ति विनोद ठाकुर का भी है। भक्ति विनोद ठाकुर भी वही उनके उपास्य विग्रह गौर गदाधर है। उनके जो महाराज बता रहे थे, जो स्वर्गगंज में उनके जो भवन है, वहाँ भी उनके पूजित विग्रह के रूप में गौर गदाधर, जहाँ उनका समाधि है भक्ति विनोद ठाकुर का, उस गौर गदाधर मंदिर भी है। कई जाओ गौर गदाधर मंदिर, जो भी भगवान के जो माधुर्य उपासक लीला में गौरांग महाप्रभु के गण में जो जाना चाहते हैं, गौर गदाधर के उपासक, और जो अन्य गण में जाना चाहते हैं गौर नित्यानंद के उपासक, तो ऐसे है। तो गौर गदाधर महाप्रभु भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत लिखे हैं, गोद्रुम कानन कुंज विधुम। उसमें अंतिम पद में वो लिखते हैं, उसको पढ़ना चाहिए, गदाधर के बारे में लिखते हैं। लास्ट स्टैंजा ऑफ दैट भजन, स्मर गौर गदाधर केली कलाम, भव गौर गदाधर पक्षचर, शृणु गौर गदाधर चारु कथाम, भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम, भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। स्मर गौर गदाधर केली कला, गौर गदाधर के सुंदर सुंदर केली पास टाइम जो हुए, उनके लविंग पास टाइम्स, उन्हीं को स्मरण करते रहो, रिमेंबर करते रहो। भव गौर गदाधर पक्षचरम, हमेशा गौर गदाधर के पक्ष, उन्हीं के ग्रुप में रहो, पक्षचर। शृणु गौर गदाधर चारु कथाम, गौर गदाधर के जो पास टाइम है उसको सुनते रहो। भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम, इस प्रकार गोद्रुम कानन कुंज विधु की भजन करते रहो। तो इस प्रकार गदाधर पंडित के आज तिरुभाव तिथि है, जैसे मैंने बताया, वो तो नित्य गौर पार्षद हैं, गौर शक्ति हैं। उनका तो समाधि हमारी नहीं, बस ऐसे ही उनको याद करेंगे, वही उनके लिए श्रद्धांजलि पुष्पांजलि। और उनका तो किसी को हम तो कोई इमिटेट की कुछ कर नहीं सकते, केवल उनके तिथि में उनके श्री चरण में यही इसी प्रार्थना कर सकते हैं हमारे श्रद्धांजलि की ओर से कि अब क्या से उनका तुलना तो नहीं कर सकते, कि उनकी कृपा का आशीर्वाद कामना करेंगे कि उनकी कृपा से हमारा भी गौर चरण में ऐसी रति मति रहे। बस यही हमारा प्रार्थना के द्वारा श्री
गौर गदाधर के चरण में हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। श्री गौर गदाधर प्रभु की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।